एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपने एक बयान को लेकर भारी विवादों में घिर गए हैं। उनके बयान के बाद विपक्षी दलों और युवाओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नेपाल में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सीमा विवादों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही किया जाएगा। Arrest them and we should not allow them to cross IP. We will not allow. We will not never allow. Then kind of will continue. You are showing bad activities. How come? Because they came from India. How come it is possible? Believe or not, really come from I am India. not. Come to legal way. Yes. But it is illegal way. Yes, same thing I am saying to you. It's a illegal way to push through They the came here last night from India. We are not And it is pushing of that thing. It is pushing by BSF from India. You cannot illegally push in Bangladesh. হ্যাঁ, সেটা বলো, তুমি ইন্ডিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছো না? তোমার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আইডি আছে? আছে, গুড। তাহলে कौन से घर पे हैं? हम लोग कोलकाता पे जा रहे थे, भाड़ा में उधर है। क्यों नहीं लिया? यहाँ कैसे पहुँच गए? हम लोग को जो लाया यहाँ पे अभी किसने दिन में आपको पूछ किया? यहाँ कौन भगा रहा था? नहीं, रात में लाया था। अभी कहाँ पे थे आप? he never come to Bangladesh. He already born in India. And his father is Indian citizenship. If they have any Please, kind of he is Indian documents, citizenship. will Maybe his mother may be Bangladeshi, but they both four are Indian citizenship. who will decide this thing? Just saying by them it's not going to be proved. Until or unless there will be any kind of document. Proof our in front of. He already acknowledged. He born in India and he never come to Bangladesh. ये And- कौन सा बोल रहे थे? क्या कहते हैं ये वो कहाँ? তুমি এখন কোথায় থেকে আসছো বলো? Verify their না না দয়া identities, করো। না? তুমি ইন্ডিয়াতে কতদিন আগে অ্যারেস্ট হয়েছো বলো? কতদিন আগে? এক সপ্তাহ আগে ইন্ডিয়াতে অ্যারেস্ট হয়েছো। তারপরে এখানে আসছো কতদিন হলো? এখানে কখন আসছো? যেখানে বাড়ি তোমরা সেখানে থাকো। আচ্ছা কলকাতায় থেকো না। হ্যাঁ, তুমি আচ্ছা রাইট মেনে নিলাম, তুমি ইন্ডিয়াতে ছিলা, ইন্ডিয়া থেকে এক সপ্তাহ আগে অ্যারেস্ট হয়েছো। অ্যারেস্ট হয়ে এখানে আসছো, ইন্ডিয়া থেকে তোমাকে এখানে নিয়ে আসছে কোন দিন? কোন দিন? मैटर ये है, देखो मुने গতকালকে আসছো? কোথা থেকে আসছো? ইন্ডিয়া থেকে না বাংলাদেশ থেকে? the whole কোন জায়গা থেকে? issue is about the identity. ইন্ডিয়ান কোন প্রদেশ থেকে আসছো? বনগা ইন্ডিয়া। তাহলে আর কি বোঝাতে চাচ্ছেন? সে ইন্ডিয়াতে অ্যারেস্ট হয়েছে এক সপ্তাহ আগে, সে গতকালকে আসছে। তাহলে কিভাবে হোয়াই ওয়ার পুশিং? Main issue is about their identity. They are Bangladeshi nationals. First thing, second. I guess they are Bangladeshi. Second But thing, there are listen to legal me. way. But there are legal way. Listen to me. You are throwing our reward. You are trying to push him in He Bangladesh. had not tried or But pushed they them. already acknowledged. Will not go for this. What they You are are saying. you are telling illegally. But in their time, we shot. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि यदि मेघालय सरकार पारंपरिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।
पटना में 2 कोचिंग के झगड़े में रोशन आनंद सर के जेल जाने के बाद अब फैजल खान उर्फ खान सर गिरफ्तारी की कगार पर हैं। पटना पुलिस ने कोचिंग पर फायरिंग की झूठी सूचना देने को लेकर खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया है। इस मामले में कल फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद खान सर के 2 गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें हथियार जब्त कर जेल भेज दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि फैजल उर्फ खान सर का नाम उसी प्राथमिकी में जोड़ा गया है। एफआईआर में खान सर की मौजूदगी में फायरिंग के आरोप हैं। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में नाम आने के बाद अगर कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली तो खान सर की गिरफ्तारी का खतरा है। समझ लीजिएगा। जितना है ना हल्का हो जिसको खान साहब को भी कर लिया गया। होगा कुछ आखिर आप क्यों होगा बता रहे हैं। देखो भाई बता क्या होगा भाई झूठे क्या ठीक कर रहा है माहौल गरम कर रहा है कुछ हो जाएगा क्या करवाते हैं। मेघालय सरकार ने सरकारी वाहनों पर नेम बोर्ड और पदनाम प्रदर्शित करने को लेकर नए नियम लागू किए हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी डिस्प्ले ऑफ नेम बोर्ड्स ऑन मोटर व्हीकल्स रेगुलेशंस 2026 इंच के तहत अब केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही सरकारी पदनाम वाले बोर्ड लगाने की अनुमति होगी। बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी वाहन पर सरकार, विभाग या अधिकारी का नाम प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Hyper is a state of mind. TVS N-Top 150, India's first hyper sports scooter, is here. TVS N-Top 150, India's first hyper sports scooter, is here. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण की योजना की घोषणा की है। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की सफलता के बाद अब डीजल के लिए इस वैकल्पिक ईंधन का परीक्षण किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया, तो इंजन बन सकता है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो सीएनजी हो, और बाद उसके साथ साथ पूरी साहब हमारे देश में क्रूड ऑयल के साथ और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की अनुमति मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली ब्लॉक 2 क्षेत्र में एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। एसटीएफ की टीम शाहजहां शेख से जुड़े बताए जा रहे एक निर्माणाधीन मकान की भी तलाशी ले रही है। मामले की जांच जारी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन एवं पर्यावरण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यूएसटीएम परिसर में वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का संदेश दिया गया। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में बड़ी संख्या में महिलाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 102B पर स्थित 19 गढ़वाल राइफल्स कैंप के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिए गए 3 स्थानीय युवकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की।
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार को शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC की 73वीं पूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, क्षेत्रीय सहयोग और विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बताया कि इस सत्र में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान पूर्वोत्तर के विकास से जुड़े विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत अभूतपूर्व विकास का साक्षी बन रहा है और आने वाले वर्षों में विकसित भारत 2047 के विजन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। And under the Prime Minister's leadership, our Ashtalakshmi, our 8 states are going from strength to strength. They will become the Ashtalakshmi of India when, as we advance towards Viksit Bharat 2047. The leaps of progress that the Northeast has undertaken under Prime Minister's visionary vision has actually led to huge economic growth across the length and breadth of the Northeast. And by 2047, as Bharat becomes Viksit, the Northeast will become a very, very central core of that Viksit Bharat 2047. Thank you. खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।